یہ جو زمین جس پہ انسان رہتے ہیں، اس زمین پہ اللہ نے ہزاروں سے اپنے نیک بندے بھیجے جنہوں نے علم اور حکمت سے انسان کے نزدیک فہم کی راہ بخشی۔ ان میں استادوں کے استاد، اماموں کے امام، سخیوں کے سخی امام جعفر صادق علیہ السلام اپنا ایک ایسا مقام رکھتے ہیں جس کو پوری دنیا جھک کے سلام کرتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد 17 ربیع الاول 83 ہجری بمطابق 20 اپریل 702 عیسوی جمعرات مدینہ پاک میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام امام محمد باقر جو امام حسین علیہ السلام کے پوتے تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی ام فرواہ تھا۔ جب آپ کی ولادت کے دن قریب آنے لگے تو امام علی زین العابدین نے یہ فرمایا کہ ان قریب اللہ مجھے ایسا پوتا دے گا جو لاکھوں لوگوں کو علم دے گا، اور اس کے علم سے قیامت تک دنیا فیض حاصل کرے گی۔ بس جیسے ہی آپ کی آمد کا دن آ پہنچا، آپ کا نزول ہوا، تو امام علی زین العابدین نے آپ کو گود میں اٹھایا اور آپ کی پیشانی کو چوم کے یہ کہا کہ کل اللہ کے رسول میرے نانا میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے اس پوتے کا نام جعفر رکھوں، ایسا دریا، ایسی ندی جو سب کو سیراب کرتی ہو۔ آپ بچپن سے ہی علم سے محبت کیا کرتے تھے اور اپنے دادا علی زین العابدین کے ساتھ بیٹھ کے مختلف علوم کے درس سنا کرتے تھے۔ آپ نے بچپن سے ہی ہر سوال کا جواب قرآن کی آیات سے دینا شروع کر دیا۔ امام زین العابدین یا امام محمد باقر کے پاس جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو آپ کے بابا اور آپ کے دادا مسکرا کے کہا کرتے تھے، اس چھوٹے سے مسئلے کو تم ہمارے چھوٹے سے جعفر سے پوچھو۔ آپ کا جواب ہر انسان کی روح تک پہنچ جاتا تھا، اور آپ کی اسی صفت کو دیکھتے ہوئے لوگوں میں آپ کا لقب صادق مشہور ہونے لگا۔ اس دور مسجد نبوی میں آپ کے بابا امام محمد باقر علیہ السلام ایک مدرسے کا بنیاد رکھ چکے تھے۔ دنیا دار حکومت سنبھال رہے تھے اور آل رسول دین کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 15 سال تک ہی پہنچی تھی کہ اتنی دیر میں آپ کے دادا امام علی زین العابدین دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کے دادا کی شہادت کے بعد آپ نے اس مدرسے کی ذمہ داریوں میں اپنے آپ کو اور بھی مصروف کر دیا۔ آپ دن کو ہمیشہ روزے میں رہا کرتے تھے اور کبھی بھی کسی نے آپ کو مصروفیات کے بغیر نہیں دیکھا۔ یا درس دیتے تھے، یا لکھتے تھے، یا پڑھاتے تھے، یا خطبہ دیتے تھے، یا بیان کرتے تھے۔ جب تمام شاگرد مسجد نبوی سے علم حاصل کر کے چلے جاتے تھے تو آپ ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 31 سال ہی تک پہنچی تھی کہ آپ کے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کو عباسی خلفاء نے شہید کر دیا۔ اپنے بابا اور اپنے دادا کی شہادت کے بعد مدرسے کی پوری ذمہ داری آپ کے سر آ پڑی۔ بس سارا دن مختلف علوم پہ آپ درس دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا مدرسہ پورے حجاز میں مشہور ہونے لگا۔ لوگ دور دور سے آتے تھے اور مختلف علوم حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ کے شاگردوں میں امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام عاصم، حضرت سفیان ثوری، عمر بن عبدالعزیز، حضرت بایزید بسطامی، حضرت ہشام بن حکم، حضرت جابر بن حیان، اور بھی ایسے شاگرد آپ کے یہاں پڑھتے تھے جنہوں نے آپ سے پڑھ کے زمانے کو روشن کر دیا۔ آپ ہزاروں علوم پہ عبور رکھتے تھے۔ آپ سے پہلے علم طب، جس کو میڈیکل سائنس کہتے ہیں، پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیمار کو دیکھنا یہ بھی کوئی عزت والا کام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے تھے، انسان کا علاج کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ آپ نے اپنے مدرسے میں میڈیکل سائنس کی اس طرح سے تعلیم دی کہ آج تک لوگ میڈیکل سائنس پڑھ کر
डॉक्टर बनते हैं और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चल के हजारों बीमारियों का इलाज करते हैं। इमाम जाफर सादिक पहले वो शख्स थे जिन्होंने इंसानों के नजदीक इस बात को वाज़ेह किया कि जितनी चीजें मिट्टी में होती हैं उतनी ही चीजें इंसान के जिस्म में होती हैं। आपने फरमाया इंसान के जिस्म में जो अनासिर पाए जाते हैं उनका तादाद बराबर नहीं। अल्लाह ने इंसान के जिस्म के वजूद में 4 चीजें बहुत ज्यादा रखी, फिर 8 उससे कुछ कम है और उसके बाद 8 और हैं जो इन 8 से भी कम है। 18वीं सदी से इंसान के जिस्म पे तहकीक की गई। 18वीं सदी में फ्रांस का एक डॉक्टर था जिसका नाम था मारा। इंसानी जिस्म पे सबसे पहले तहकीक उसने की। उसके नजदीक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का ये नजरिया था कि जो अंसर मिट्टी में है वो ही इंसानी जिस्म में। ये रिसर्च फ्रांस से होते होते ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची और बिलाखिर 19वीं सदी में तमाम डॉक्टरों ने इस बात को तस्लीम किया कि इंसानी जिस्म में कुल 20 अनासिर मौजूद हैं। 4 सबसे ज्यादा और उसके बाद 8 उन 4 से कम और उसके बाद 8 जो उन 8 से भी कम। इंसानी जिस्म में वो जो 4 अनासिर जो सबसे ज्यादा हैं। नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 हाइड्रोजन, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 नाइट्रोजन। और उसके मुकाबले में जो 8 चीजें कम हैं। नंबर 1 मैग्नीशियम, नंबर 2 सोडियम, नंबर 3 पोटेशियम, नंबर 4 कैल्शियम, नंबर 5 फॉस्फोरस, नंबर 6 क्लोरीन, नंबर 7 सल्फर, नंबर 8 आयरन। और जो 8 इन 8 से भी कम है। नंबर 1 मोलिडिनम, नंबर 2 सिलीनियम, नंबर 3 फ्लोरीन, नंबर 4 कोबाल्ट, नंबर 5 मैग्नीज, नंबर 6 कॉपर, नंबर 7 आयोडीन, नंबर 8 जिंक। जब उन डॉक्टरों ने इस बात की तहकीक की तो वो दंग रह गए कि हमने इतनी रिसर्च के बाद जो चीजें आज जानी, लेकिन आज से 1400 साल पहले इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने पहले ही दुनिया को बता दी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन 20 अनासिर के उतार चढ़ाव से इंसान के वजूद में बीमारियां जन्म लेती हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने इंसान की उम्र तवील रखी है, लेकिन इंसान अपनी ग़िज़ा से अपनी उम्र को कम करते हैं। किसी ने कहा, ऐ नवाज़े रसूल, वो कौन सा अमल है जिसको करने से उम्र कम होती है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गोश्त ज्यादा खाने से उम्र कम होती है, खाना ज्यादा खाने से उम्र कम होती है। 18वीं सदी के फ्रांस के डॉक्टरों ने काफी रिसर्च के बाद इस बात को तस्लीम किया कि ज्यादा खाना इंसान की उम्र को कम करता है और उन्होंने मदीने की तरफ मुंह करके सलाम किया कि 1400 साल पहले इमाम जाफर सादिक ने अमराज की जड़ को पहचान लिया कि जैसे जैसे इंसान गोश्त ज्यादा खाता रहता है वो अपने हाथों से अपनी उम्र को कम करता रहता है। ये सोच इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने दी कि मछली खाने के बाद दूध न पिया करो क्योंकि इससे जुज़ाम बीमारी होती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसानी जिस्म बीमार होने के 4 अहम असबाब होते हैं। पहला कि इंसान के वजूद में अनासिर ज्यादा और कम होने से इंसानी जिस्म बीमार होता है। दूसरा, ग़िज़ा गलत खाने से इंसान बीमार होता है। तीसरा, हवा के जरिए से जो जरासीम इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं और इंसान बीमार होता है। और चौथा, किसी बीमार इंसान के जिस्म से बाद मर्तबा ऐसी शुआएं निकलती हैं जो एक सेहतमंद इंसान के जिस्म को बीमार करती हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोशनी से, शुआओं से इंसानी जिस्म बीमार भी हो सकते हैं और सेहत याफ्ता भी। उस दौर के लोग हैरान हो गए। चलो मान लिया अनासिर ज्यादा कम होने से इंसान बीमार होता है, मान लिया कि ग़िज़ा गलत खाने से इंसान बीमार हो गया, मान लिया, और जरासीम दाखिल होने से इंसान बीमार हो गया, मान लिया, लेकिन किसी के जिस्म से शुआएं निकलती हैं और किसी को बीमार कर सकती है, ये कैसे हो सकता है? बिलाखिर 17वीं और 18वीं सदी के बीच में रूस का एक शहर है नोवो, उन्होंने इस बात पे रिसर्च की। मुसलसल 20 साल रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये तस्लीम किया कि इमाम जाफर सादिक का नजरिया बिल्कुल सही है। बाज मर्तबा इंसान के जिस्म से कुछ अल्ट्रा वायलेट ऐसी रेजेस निकलती हैं जो सेहतमंद इंसान को भी बीमार कर देती हैं, क्योंकि इंसानी जिस्म सेल्स का बना हुआ है। बीमार इंसान की शुआएं इन सेल्स पे असर करती हैं और यूं इंसान बीमार होने लगता है। और फिर अमेरिका में एक रिसर्च सेंटर कायम किया गया कि उन बीमारियों का पता लगाया जाए कि जो
इंसान के जिस्म से निकली हुई शुआओं के सबब होती है। तो इस पे डॉक्टर जॉन मॉन्ट ने एक किताब लिख दी कि वाकई काफी रिसर्च के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इंसान के जिस्म की शुआएं भी सामने वाले सेहतमंद इंसान को बीमार करती है, जो आज से सैकड़ों साल पहले मुसलमानों के इमाम जाफर सादिक ने इंसानों को बता दिया। और इस नतीजे को बेस बना के उन्होंने रोशनी के वसीले से इंसानी जिस्म का इलाज करने की भी शुरुआत की और वहीं से शुआओं से इलाज करना शुरू हो चुका। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान को अपने माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नई नई बीमारियां वजूद में आएंगी और इंसान की उम्र दिन ब दिन कम होने लगेगी। बुकरात द फादर ऑफ मेडिकल साइंस जिसे कहते हैं, उसने ये तस्लीम किया कि नई नई बीमारियों का सबब माहौल की आलूदगी है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं माओं को नसीहत करता हूँ कि वो अपने बच्चों को दिल की तरफ सुलाए, इससे बच्चा कम बीमार होगा और सुकून की नींद सोएगा। उस दौर के लोगों ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन 19वीं सदी में अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी कायम हुई जिसका नाम था कॉर्नल यूनिवर्सिटी। उसमें इस बात पे तहकीक हुई कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने शीर ख्वाह बच्चे को माँ की उल्टी तरफ सुलाने के लिए क्यों कहा था। बिलाखिर उन्हें जवाब मिल गया और उन्होंने भी मदीने की तरफ मुंह करके सलाम किया और कहा, ये बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो माँ के दिल की धड़कन को महसूस करता है और जब बाहर निकलता है तो उसको वो धड़कन महसूस नहीं होती, तो बेचैन रहता है। अगर बच्चे को माँ के दिल के करीब सुलाया जाए तो वो वही धड़कन जो उसे पेट में सुनाई देती थी उसे महसूस करेगा और इत्मीनान से सोएगा और यूं बच्चा बीमारियों से दूर रहेगा, सुकून की नींद पाएगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पहले अरस्तु की इस सोच को समझते थे कि ये दुनिया 4 अनासिर पे मबनी है, मिट्टी, पानी, हवा और आग। लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अरस्तु इतना बड़ा साइंसदान होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी गलती कर गया। दुनिया जिसको अनसर समझती है, असल में ये अनसर नहीं बल्कि अनासिर का मजमुआ है। मिट्टी में भी अनासिर है, हवा में भी अनासिर है, पानी में भी अनासिर है, आग में भी अनासिर है। उस दौर के लोगों ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन 18वीं सदी में एक साइंटिस्ट जोसेफ ने इस बात को साबित किया कि उन्होंने सच कहा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पानी में एक अंसर ऐसा है जिससे हम लोहे को भी पिघला सकते हैं। उस दौर के लोग हंसते रहे कि पानी से लोहा कैसे पिघलेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के कहा, अगर पानी में से एक अंसर को निकाल दिया जाए तो पानी भी आग लगा सकता है। उस दौर के लोग हंसते रहे, लेकिन 1766 के अंदर एक साइंटिस्ट गुजरा जिसका नाम था हेनरी कैवेंडिश। उसने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इस कॉल को समझा और पानी पे रिसर्च की और दुनिया के नजदीक ये बात रखी कि पानी में 2 अनासिर पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए तो हाइड्रोजन से आग लग सकती है, चीजों को पिघलाया जा सकता है। उन्होंने भी मदीने की तरफ मुंह करके मुसलमानों के इमाम जाफर सादिक को सलाम करके कहा कि जो उन्होंने कहा वो सच था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पहले लोग ये समझा करते थे कि आंख से रोशनी निकलती है तभी चीजें हमें नजर आती हैं, लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आंखों से रोशनी निकलती नहीं बल्कि चीजों पे जो रोशनी लगती है उस रोशनी के अक्स को आंख महफूज करती है और उस वक्त वो अक्स उल्टा होता है। इंसान का दिमाग उस अक्स को सीधा करके दिखाता है। लोग इस बात का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट रॉगन बिगन ने इस बात को तरजीह दी कि मुसलमानों के इमाम कहते थे कि आंख से रोशनी निकलती नहीं बल्कि आंख जो चीजों पे रोशनी पड़ती है उसका अक्स दिमाग तक पहुंचाती है। तो जब इस सोच पे काम किया गया तो 1608 में इस नजरिए को परखा और ये समझा कि अगर आंख और दूर की चीजों के बीच में कोई ऐसी चीज रखें जो दूर की चीजों और आंख के दरमियान रखने से दूर की चीजों पे पड़ती हुई शुआएं आंख तक वाज़ेह हो, तो ऐसे इंसानी आंख दूर की चीज करीब होते हुए देख सकती है। और बिलाखिर उन्होंने मंजिल पाली और इस बात को तस्लीम किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो चांद इंसान इतना छोटा सा देखता है, असल में ये एक छोटी सी दुनिया की मिसल है और इसमें अल्लाह ने पहाड़ तश्कील दिए। लोग उस वक्त मजाक उड़ाते थे, लेकिन
7 जनवरी 1610 में गैलीलियो ने जब उसी दूरबीन से जो इमाम के अकवाल की रोशनी में बनाई गई थी चांद को देखा तो वो दंग रह गया और दुनिया को चीख चीख के बताने लगा कि मुसलमानों के इमाम जाफर सादिक ने सच कहा था। ये चांद दूर से एक दुनिया लगती है और इसमें पहाड़ बसते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो सितारे जो तुम एक नुक्ते की तरह आसमानों पे देखते हो, असल में इन सितारों में बाज़ सितारे ऐसे हैं जो हमारे सूरज से हजारों गुना बड़े हैं और उनके नजदीक हमारा सूरज एक बुझे हुए चिराग की मिसल है। लोग हंसते रहे कि ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इस बात पे जब मुख्तलिफ ममालिक के साइंटिस्ट रिसर्च करते रहे और उनके नजदीक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का ये कॉल आया तो उन्होंने रेडियो टेलीस्कोप को वजूद दिया और 1963 ईस्वी के अंदर पहली मर्तबा ऐसे सितारे देखे गए जो हमारे सूरज से हजारों गुना बड़े हैं और उन तमाम साइंटिस्ट ने तस्लीम किया कि मुसलमानों का इमाम जाफर सादिक सच्चा है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह दिन और रात होते हैं इसमें जमीन का घूमना है। लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया, अगर जमीन घूमती तो हम गिर जाते, लेकिन इस बात को तस्लीम किया गया कि जमीन घूमती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह हमारा सूरज और हमारी दुनिया है वैसे ही इन आसमानों में लाखों सूरज और एक एक सूरज की कई कई जमीनें हैं। लोग मजाक उड़ाते रहे, लेकिन 1970 में ये तस्लीम किया गया कि इमाम जाफर सादिक ने जो कहा वो सच है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कायनात की हर चीज हरकत करती है। लोगों ने उस दौर मजाक समझा कि पत्थर पड़ा है कैसे हरकत कर रहा है, ये चीजें रखी हुई हैं कैसे हरकत कर रही हैं। लेकिन जे थॉमसन, नीम बोहर और मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूफ दिया कि जो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया वो सच है। हर जानदार और बेजान चीजों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन हरकत करते हैं। एटन कोल्बर 1972 में जब इसने हिब्रू यूनिवर्सिटी में तदरीस शुरू की तो इसने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के लिए ये कहा कि उन्होंने 400 ऐसे शागिर्द दुनिया को दिए जिन्होंने पूरी दुनिया में इल्म फैलाया। अगर वो 400 शागिर्द ना होते तो आज ये दुनिया इस जगह ना होती जिस जगह आज है। आपकी सखावत का आलम ये था कि खुद भूखे रह के दूसरों का पेट भरना आपकी आदत थी और आपके अखलाक का आलम ये था कि एक मर्तबा आपके घर में आपके कनीज के हाथों से आपका बच्चा गिर गया और वो गिर के मर गया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जैसे ही घर में दाखिल हुए उस कनीज ने इमाम के चेहरे को देखा। इमाम ने जैसे ही कनीज के चेहरे पे खौफ देखा फौरन कह दिया, ऐ मेरी कनीज, मैंने तुम्हें आजाद किया। कनीज कदमों में गिर के कहने लगी कि ऐ मेरे मौला, मैंने आपका बच्चा मार दिया और आप मुझे आजाद कर रहे हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, याद रखना जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे जो खौफ है उसका ये कफ़ारा है कि तुम्हें आजाद किया जाए। जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। लोगों के दिलों में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बढ़ने लगी। उस दौर दुनिया के तमाम आलिम से जब कोई पूछता था कि तुमने ये इल्म कहाँ से सीखा तो सब ये कहते थे, हमने ये उलूम नवासाए रसूल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सीखे। आपके लिए हजरत अबू हनीफा फरमाते हैं कि अगर मैं 2 साल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का शागिर्द ना होता तो आज ये नौमान इमाम आजम ना होता। आपकी शोहरत तो इज्जत बढ़ते हुए देख के अब्बासी खुलफा और भी हसद करने लगे कि बादशाह हम हैं, हुकूमत हमारी है, लेकिन लोग इन फटे पुराने कपड़े पहनने वाले आले अली आले फातिमा की इज्जत क्यों किया करते हैं। तो बस यूं सादात पे खुल्लम खुल्ला जुल्म शुरू हो गया। सादात को कत्ल करने का सिलसिला कायम हो गया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मदरसे पे पाबंदी लगा दी गई और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्दों को खरीद किया गया। जहाँ जहाँ जो सैयद मिलता था उसका सर तन से जुदा होता था और यूं सैयद और सादात ने हिजाज छोड़ना शुरू कर दिया। कोई सिंध की तरफ रवा हुआ तो कोई खुरासान की तरफ, और वहाँ वक्त के बादशाह ने ये हुक्म नाफिज करवाया कि जो इमाम जाफर सादिक से मिलेगा वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद है। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्दों से शरीयत मोहम्मदी में तरामीम की गई।
تاریخ نے لکھ دیا کہ اس دور سے پہلے نماز کا طریقہ ایک تھا، نہ کوئی فرقہ تھا، نہ کوئی مسلک تھا۔ اس دور کے بعد کچھ لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مسلک اور بتائی ہوئی شریعت کے اصول جو انہوں نے اپنے نانا سے سنے ان پہ عمل کرتے تھے، تو کچھ وقت کے بادشاہ کے جو درباری امام تھے ان کی بتائی ہوئی شریعت پہ عمل کرتے تھے، اور تبھی سے مسلک اور فرقوں کے بننے کا آغاز ہو گیا۔ بعض مرتبہ منصور نے آپ کو قتل کروانا چاہا۔ ایک مرتبہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنی دربار میں طلب کیا اور سب سے کہا کہ جب امام جعفر صادق میرے محل آئے کوئی اس کی تعظیم نہیں کرے گا، کوئی اس کو سلام نہیں کرے گا، ہم اس کی توہین کریں گے۔ لیکن جیسے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام وقت کے بادشاہ کے محل میں داخل ہوتے ہیں، وہ خود اپنی جگہ سے اٹھ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہاتھ چوم کر اپنے تخت پہ نواسۂ رسول امام جعفر صادق کو بٹھاتے ہیں۔ جب حد سے زیادہ گھبراہٹ منصور کے وجود پہ حاوی ہوئی تو اس نے پانی طلب کیا۔ منصور کا غلام جب پانی لے کے آیا تو امام جعفر صادق نے کہا، رکو اے بادشاہ کہلانے والے، بتاؤ اگر تمہیں فی الوقت یہ پانی نہ ملے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا، میں کیسے بھی کر کے پانی حاصل کروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ اگر اس وقت تم اس پانی کی قیمت لگاؤ تو کیا قیمت لگاؤ گے؟ اس نے کہا، میں اپنی آدھی دولت دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ امام نے کہا، پانی پی لو۔ اس نے جیسے ہی پانی پیا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے بادشاہ کہلانے والے، بتاؤ اگر یہ پانی جو تم نے ابھی پیا تمہارے جسم سے باہر نہ نکلے اور ناسور بننے لگے، بیماریاں ہونے لگے، تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا، میں کسی حکیم کو بلاؤں گا اور کہوں گا میرا علاج کر۔ امام نے کہا، اس کی کیا قیمت لگاؤ گے؟ اس نے کہا، میں اپنی آدھی دولت دے دوں گا۔ امام مسکرا کے فرمانے لگے، اے بادشاہ کہلانے والے، دیکھ ایک انسان کی اوقات کیا ہے، تمہاری یہ پوری دولت صرف اس تھوڑے سے پانی جتنی ہے۔ تم نے آدھی دولت پانی پینے میں ختم کر دی اور آدھی دولت پانی نکالنے میں، پھر بھی تو تکبر کرتا ہے، پھر بھی تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے، تیری قدرت تیرے جسم پہ نہیں اور تو زمین کی بات کرتا ہے۔ انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے۔ جب بے انتہا عباسی خلفاء جلنے لگے تو انہوں نے امام کو زہر دلوایا۔ بعض مرتبہ زہر دینے کے بعد بالآخر 15 شوال 148 ہجری بمطابق 14 دسمبر 765 عیسوی میں انگور میں زہر دینے کے سبب آپ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے، اور انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے علم کا یہ دروازہ بھی اپنے لیے بند کر دیا۔ ضروری اطلاع ہے کہ ایک عبارہ ہے مہربان شادی دفتر۔ مہربان شادی دفتر کے پاس تقریباً 10,000 لڑکی لڑکوں کے رشتے ہیں، جس میں باہر کی کنٹری کے بھی، باہر کے ممالک کے بھی لڑکیاں لڑکوں کے رشتے، تمام اچھے رشتے، پڑھی لکھی لڑکیاں، پڑھے لکھے لڑکے، جس کو بھی اچھا رشتہ چاہیے ہو لڑکے کا لڑکی کا، وہ مہربان شادی دفتر سے رابطہ کریں، انشاءاللہ مالک اچھا کریں گے۔ تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں، شادی کا فارم فل کریں اور اپنے لیے ایک اچھا رشتہ حاصل کریں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔